Good morning, ma'am. Good morning, Sanrita. Good morning. क्वेश्चंस किए थे आपने जो दिए थे मैंने? Good morning, Mahesh. Okay, so today we'll be discussing स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स. ठीक है, उसमें आपका फर्स्ट प्रोटोकॉल है गो बैक इन, सो वील स्टडी दैट. कल आपका सिलेक्टिव रिपीट एक प्रोटोकॉल है स्लाइडिंग विंडो में ही, वो करेंगे, एंड प्लस क्वेश्चंस सारे ही प्रोटोकॉल्स के जितने भी तक हमने तीनों जो प्रोटोकॉल्स हैं आपके स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड जो आज आप करोगे, एंड सिलेक्टिव रिपीट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो, फिर आपका ये फ्लो कंट्रोल का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो let's start with sliding window protocol. पूनम के अलावा किसी ने भी सोल्यूशन नहीं भेजा है क्वेश्चन का, तो जब आप मुझे सोल्यूशन भेज दोगे तो मैं आपसे वो क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगी. ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगी कि आप लोग करो नहीं और फिर मैं डिस्कस कर दूं, उसको कोई फायदा भी नहीं है. तो जो आप लोग क्वेश्चंस करके मुझे भेज दोगे सोल्यूशन, तो सही है या गलत है उसके हिसाब से फिर मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी क्वेश्चन. So now we'll start sliding window protocol. बेसिकली अभी जब हमने स्टॉप एंड वेट ARQ या स्टॉप एंड वेट पढ़ा था, सो उसमें वी स्टडी दैट सेंडर के एंड पे कितनी वो भेज सकता है. सेंडर जो है एक टाइम पे कितने फ्रेम्स सेंड कर सकता है, एंड रिसीवर एक टाइम पे कितने फ्रेम्स रिसीव कर सकता है. किसी को याद है? स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में दोनों ही जो प्रोटोकॉल्स थे आपके स्टॉप एंड वेट ARQ, उन दोनों में जब हम पढ़ रहे थे, सो वन मतलब सेंडर कैन सेंड वन फ्रेम एट अ टाइम एंड रिसीवर कैन रिसीव वन फ्रेम एट अ टाइम. करेक्ट. सो ये बेसिकली जो था हमारा कि स्टॉप एंड वेट का वो था प्रोसेस कि भले ही सेंडर के पास नो मैटर हाउ मेनी फ्रेम्स आर अवेलेबल, नो मैटर हाउ मेनी फ्रेम्स आर रेडी टू बी सेंड, बट स्टिल सेंडर कुड ओनली सेंड ओनली वन फ्रेम एट अ टाइम. ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस कि अगर the message is very big, so sender has to wait for a large amount of time in order to send the messages. So क्या उसके लिए क्या ऑप्शन आया? The option that was introduced was sliding window protocol. What is this protocol basically? In sliding window we have buffers. Buffers means storage spaces we have both at sender side and at receiver side. ठीक है, so sliding window protocol में what happens is that कि sender can send the what you can say the messages or the frames depending on the window, on the size of the window. So we have two buffers, we can say we have two windows, one at sender side that is sender window and one at receiver side that is receiver window. Okay, so on the basis of that size, sender will decide that how many
frames I can send at one point of time. So if we start now, sliding window protocol is a flow control protocol. It allows the sender to send multiple frames before needing the acknowledgement. What was happening in stop and wait was the sender was sending one frame, then he was waiting for the acknowledgement. Then when after receiving the acknowledgement, then sender was able to send the other frame. But what will happen in sliding window is the sender will send the multiple frames, that depends on the window size. That many frames can be sent before even asking for the acknowledgement. Okay, in these protocols, sender has a buffer called the sending window and receiver has a buffer called the receiving window. So sender slides its window on receiving the acknowledgement for the send frames. Means that suppose this is your frame, this is what is your frame, and your window is of size 2. So this means that sender can send 2 frames at a time. Sender can send 2 frames at a time, and when he or she will receive the acknowledgement, that is acknowledgement 3. This means that 0 and 1, sorry, acknowledgement 2, you can say 0 is starting 1. So 0 and 1 are received. Now you have to slide this window. This window is slide and it will send the rest of the 2 frames. So this is what is sliding window. ये बेसिक क्लियर हो गया, मतलब स्लाइडिंग विंडो का एंड व्हाट इज द व्हाई वी इंट्रोड्यूस स्लाइडिंग विंडो, राइट? Then next we have maximum number of frames that sender can send without acknowledgement is equal to sender window size. So what is sender window size? Sender window size is basically the maximum number of frames, जितने number of frames that sender can send without receiving the acknowledgement, that is your window size, that is the window size of the sender. Then we have, in a sliding window protocol, optimal sender window size is equal to 1 plus 2a. What is a? What is a? A is equal to no Lipika, A is not acknowledgement. Correct, Poonam. The A is T upon TP, that is transmission time upon propagation time. Lipika, पुरानी वीडियोस देखी हैं? पुराने लेक्चर्स वीडियो देख ली? Yes, ma'am. फिर ए क्यों नहीं पता? फॉर्मूला था ना ये एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए 1/1 + 2a स्टॉप एंड वेट का, याद है? किसी को याद है वाला फॉर्मूला? एफिशिएंसी फॉर स्टॉप एंड वेट क्या थी? 1/1 + 2a थी. Yes, okay. ठीक है. So basically what it is, they are saying that if you want to achieve 100% efficiency, or you want in your sliding window protocol, you want that my efficiency should be 100%. So in that case, what is the optimal windows sender window size? Optimal size is basically 1 plus 2a. Okay. Then we have efficiency is basically, if we talk in terms of your sliding window protocol, efficiency is basically sender window size upon optimal sender window size. ठीक है? If we talk about efficiency in terms of sender window size, so efficiency is basically sender की जो window का size है upon optimal sender window size. So optimal sender window size will always be 1 plus 2a. ठीक है? Optimal sender window size is always 1 plus 2a. Now your efficiency, that is for, you have 3 protocols. One is a stop and wait, second is go back and third is selective repeat. So now the efficiency of these 3 protocols will depend on the sender window size, because optimal sender window size is always 1 plus 2a. Now what was the efficiency for stop and wait? अभी बताया मैंने. What was the efficiency?
1/1 plus 2a, right? So this one basically tells about the sender window size, and sender window size is what? Sender window size is number of frames that a sender can send at a particular amount of time. So in stop and wait protocol, only one frame was allowed to be sent by the sender. So that is why efficiency of stop and wait is 1/1 plus 2a. 1 means why 1 is here? Because 1 is the sender window size in the protocol. This much is clear? Any doubt? Okay. Then next we have, so abhi, if you say that I have 1 plus 2a sequence numbers. Why we were having sequence numbers? Sequence numbers का concept याद है आप लोगों को? Stop and wait में why we had sequence numbers? Yes. स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में सीक्वेंस नंबर्स क्यों इंट्रोड्यूस किए गए थे? किस पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे? कितने सीक्वेंस नंबर्स थे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में? रिवाइज किया था किसी ने? Ma'am, for acknowledgement, sending and receiver get knows. How many sequence numbers are there in stop and wait protocol? ठीक है, आपने बोला कि सीक्वेंस नंबर्स एक्नॉलेजमेंट के लिए यूज किया था कि रिसीवर को पता हो कि व्हिच पैकेट इज टू बी सेंड नाउ, व्हिच फ्रेम इज टू बी सेंड नाउ, ये बोल रहे हो आप? Yes, ma'am. Send and which receiver get knows which I will frame I will receive. करेक्ट, करेक्ट. हाउ मेनी सीक्वेंस नंबर्स? only two sequence numbers में. ओनली 2, 0 एंड 1? Yes ma'am. ठीक है. So अगर 0 and 1 sequence numbers are required, suppose if I say 0 and 1 sequence numbers are required, so how many bits will be required for them? 2 bits. 2 bits. 2 bits for sequence numbers, that is 0 0 and 0 1, right? With 2 bits I can depict 2 sequence numbers. Yes ma'am. Right? So they are saying that if you have 1 plus 2a sequence numbers, if you have 1 plus 2a sequence numbers, then minimum number of bits that are required in the sequence number field is basically log base 2 1 plus 2a. मतलब कि अगर आपके पास, if you talk about है कि two sequence numbers हैं, ठीक है, 2 sequence numbers हैं, so how many bits are required, that will be decided by log base 2 and then 2. So they are saying basically 1 bit is there, but 1 bit इसमें क्या केस आएगा आपका? अगर आपको 1 plus 2a है, ठीक है, this was for your कि आपके पास सिर्फ 2 sequence numbers है 0 and 1, but अगर आपके पास sequence numbers हो जाए 1 plus 2a, 1 plus 2a sequence numbers क्यों होंगे आपके पास? Why? Because यहाँ पे they are saying that sender window size, optimal sender window size is 1 plus 2a. ठीक है, so if you have 1 plus 2a sequence numbers, तो आपको कितनी bits की जरूरत पड़ेगी? That will be decided by log base 2 1 plus 2a. Basically ऐसे याद रखो कि अगर आपके पास एक bit है, if you have 1 bit, 1 bit से आप कितने sequence numbers डिपिक्ट कर सकते हो? 2 कर सकते हो एक बिट से भी.
राइट। अगर मैं 0 और 1 लिख दूं, सो दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग सीक्वेंस नंबर्स ओनली। सो एक बिट के लिए भी आप 2 सीक्वेंस नंबर्स डिपिक्ट कर सकते हो, 2 बिट से आप 4 सीक्वेंस नंबर्स डिपिक्ट कर सकते हो, राइट। अगर मेरे पास 2 बिट्स हैं, सपोज आई हैव ओनली 1 बिट, दैट इज I have only 1 bit with me, so I can represent 2 numbers, that is 0, 1. If I have 2 bits, means 2 bits I have with me, so I can represent 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. I can represent 4 sequence numbers, right? Yes, ma'am. ठीक है। So if you have 1 plus 2 a sequence numbers, मतलब आपके पास इतने 4 sequence numbers हैं, they are saying that you have 4 sequence numbers and you want to find the number of bits. So minimum number of bits आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, log base 2 4, that is equal to log base 2 to the power 2. I can write 4 as 2 to the power 2. This 2 will come here and this will become log base 2 2, that is equal to 1. So that is equal to 2. So this is the basic formula they are saying, that if you have 1 plus 2 a sequence numbers, then how many bits you require to find the bits in sequence number field, कितनी बिट्स की जरूरत पड़ेगी आपको, दैट इज यू हैव टू टेक द लॉग ऑफ 1 plus 2a. ये चीज क्लियर हो गई? Okay, then they are saying that if you have a sequence number that is of n bits, ठीक है, field है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज आपको क्या ध्यान में रखनी, what you have to keep in mind is, here they are saying that you have 1 plus 2a sequence numbers. So if you want to find the number of bits, then you will take log. But if you have field, if you have bits and you have to find the sequence numbers, you have to raise it to the power, okay, 2 raised to power. ये चीज, ये डिफरेंस याद रखना. Why? Because हो सकता है कि वहां पे आपको थोड़ा confusion हो जाए, maybe that what you have to find. So here they are saying that you have sequence numbers and you want to find the bits. So when you have sequence numbers and you find the bits, you take the log. And when you have the bits and you find the sequence numbers, then you have to raise it to the power. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. So if you have 1 plus 2a sequence numbers, number of bits will be calculated by finding the log. But if you have n bits in your sequence number field, then how many sequence numbers are possible? Obviously 2 to the power n. Abhi I have told that if I have 2 bits means how many I can find, how many sequence numbers I can find. I can find 2 raised to power 2, that is 4 sequence numbers I can have, right? That how, what are the numbers? 0, 1, 2 and 3. These are the sequence numbers that I can have. So this means that if I have n bits in my sequence number field, so maximum number of frames कितने हो सकते हैं? 2 raised to power n, right? So if you have n bits in your sequence number field, sender window size will be minimum of either 1 plus 2a or 2 raised to power n. जो भी value इसमें से छोटी होगी, that will be your sender window size. This is basically the optimal size and this is basically the maximum size. So the one which will be minimum out of these two will be the sender window size. This is clear? Yes, ma'am. ठीक है. So ये वाली जो फॉर्मुलेज हैं ये आप ध्यान में रखोगे. Why? Because हो सकता है कि ये आपसे पूछे जाएं. Okay, before moving, let's discuss few questions. कुछ questions discuss कर लेते हैं. Okay, so transmission time is 1 millisecond. Propagation time is 49.5 millisecond. So they are asking what will be the sender window size for maximum efficiency. Tell me what will be the size, what will be the window size. याद है फॉर्मूला? अभी अभी पढ़ा है कि विंडो साइज अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो ऑप्टिमल विंडो साइज क्या होना चाहिए? वन प्लस 2
Yes, 1 plus 2a. So if you want maximum efficiency, so optimal sender window size होना चाहिए 1 plus 2a. So now find 1 plus 2a and then उसके बाद tell me कि window size के लिए आपको कितनी bits basically जरूरत पड़ेगी. विंडो साइज आ जाएगा आपका. उसके बाद आपको ये बताना है कि इसमें आपकी जरूरत कितनी है, आपकी बिट्स आपको कितनी जरूरत पड़ेगी सेंटर विंडो साइज के लिए. टाइम क्यों नहीं लगना चाहिए 1.0404. Ma'am, 1 plus 2a equals to 1.03 something. एक मिनट. एक बार आप लोग जरा ए का फॉर्मूला चेक करो. क्या बताया था ए का फॉर्मूला? TT by TP. T upon TP, ma'am. श्योर हो टीटी अपॉन टीपी है? प्रीवियस स्लाइड चेक करो एक बार जरा. एक मिनट. लेट मी जस्ट चेक. क्या है? TP by TT. अगर मैंने भी टीटी बाई टीपी कर दिया, आप लोग ने भी नहीं बोला कि नहीं मैम टीपी बाई टीटी है, आप गलत कह रहे हो क्योंकि आपको याद ही नहीं है ना. टीपी बाई टीटी है. ओके, उसके थ्रू सॉल्व करो. मैंने भी किसी पे ध्यान है, मैं टीटी बाई टीपी एक्सेप्ट कर लिया. नॉट टीटी बाई टीपी, इट्स टीपी बाई टीटी. तो ये आपका आया क्या आया? आपका 100 या ये आया विंडो साइज, राइट? सो सेंटर विंडो साइज कितना होना चाहिए? ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा नंबर ऑफ बिट्स से. नंबर ऑफ बिट्स कितनी होनी चाहिए आपकी सेंटर विंडो साइज की कि आपकी 100 आपकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो जाए. So what you will do, you have the formula that optimal
sender window size is 1 plus 2a. That is 1 plus 2 TP upon TT. So it is TP upon TT is 49.5 only. So 1 plus 2 into 49.5. That is equal to 100. Correct. Now they are saying, they are asking what will be the sender window size. So 100 आपका जो आया है that is basically, ठीक है आपकी बात सही है, but size आप कैसे बताते हो? Size आप बताते हो in terms of bits. So they are saying कि minimum bits कितनी required होंगी आपकी sender window size के लिए. So वो आप कैसे बताओगे? बताओ क्या आएगी बिट्स कितनी होंगी? 100 सीक्वेंस नंबर्स आपके अकोमोडेट हो जाएं. सेंटर विंडो साइज बेसिकली क्या बताती है? सेंटर विंडो साइज बताती है आपकी इतने नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर्स आपके आ सकते हैं, इतने सीक्वेंस नंबर्स आप अकोमोडेट कर सकते हो इस विंडो साइज में. सो दिस मींस अगर आपका optimal sender window size 100 है, this means that you can accommodate 100 sequence numbers. So if you can accommodate 100 sequence numbers, so how many bits will be required for accommodating 100 sequence numbers? log 2. हाँ बताओ, वैल्यू बताओ, आंसर बताओ मेरे को. 50 बिट्स नहीं होगा, नो. Ma'am, log 2 1 plus 2a equals to 100. That formula. 1 plus 2 है तो आपने निकाल लिया ना 100. और इसमें आपको फॉर्मूले की जरूरत ही क्या है? ये तो आप कब से पढ़ते आ रहे हो कि अगर आपके पास 100 वैल्यू है आपकी, so you know that 2 raised to power 7 is what? 2 raised to power 7 is 128. 2 raised to power 6 is 64. So I have 100 things. I have 100 चीजें मेरे पास, so I can accommodate them in 128, but I cannot accommodate them in 64. So this means how many bits I'll be needing? ये तो बेसिक आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो ना. 7 bits will be needed because 2 raised to power 7 is 128 and I need 100. I have 100 sequence numbers, so I need at least 7 bits so that I can accommodate these 100 sequence numbers. अब clear हुआ ये वाली चीज everyone? और अगर log वाले फॉर्मूले से करना है तो उससे भी कर सकते हो. इट इज log बेस 2 1 plus 2a आपका 100 हो गया. 100 आपका 2 raised to power 6 तो आप लिख नहीं सकते because 2 raised to power 6 is 64. So you have to write log base 200 as 2 raised to power 7 something. So 7 point something कुछ होगा, but your answer will around 7 bits. Clear है ये चीज? Then next question is इसी का बी पार्ट है, मतलब आपका ट्रांसमिशन टाइम एंड आपका प्रोपगेशन टाइम दोनों सेम है, बट क्वेश्चन ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स required in sequence number field is 6. So what is the efficiency? So आपको ट्रांसमिशन टाइम दिया हुआ है, प्रोपगेशन टाइम दिया गया है और आपको सीक्वेंस नंबर फील्ड में बिट्स भी दी गई है, 6 बिट्स हैं आपकी. नाउ दे आर आस्किंग यू कि व्हाट विल बी द एफिशिएंसी. यस, log 200 6.64 है तो 6.64 को आप अप्रॉक्स 7 कर सकते हो, 7 बिट्स. लॉग की जरूरत ही नहीं है इस फॉर्मूले में, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो.
करेक्ट, करेक्ट महेश, 0.64 या फिर 64%, दोनों करेक्ट हैं। सो कैसे करोगे वाला क्वेश्चन? सी यहाँ पे आपको 6 बिट्स ऑलरेडी गिवन है, राइट? 6 बिट्स मतलब कि व्हाट यू कैन से 6 बिट्स में कितने आपकी फील्ड आ जाएगी, मतलब आपकी अगर 6 बिट्स हैं तो सीक्वेंस नंबर्स कितने हो गए? 2 to the power 6. 2 to the power 6, दैट इज 64, राइट? 64 हो गए। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बताया था? सेंटर विंडो साइज भी आपकी 64 ही हो गई, सेंटर विंडो साइज भी 64 की हो जाएगी, राइट? एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया था कि सेंडर विंडो साइज अपॉन योर ऑप्टिमल सेंडर विंडो साइज। ऑप्टिमल सेंडर विंडो साइज कितनी है आपकी? 1 + 2a होती है, तो दैट इज 100। और आपकी सेंडर विंडो साइज कितने की हो गई यहाँ पे? 64, दैट इज 64 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू ईदर 0.64 या फिर 64%। इसमें कोई डाउट है? No, ma'am. क्लियर हुआ एफिशिएंसी का? कोई भी डाउट है तो पूछो, अगर एफिशिएंसी में कुछ डाउट आ रहा है किसी को भी। ठीक है, सो 64% आपकी एफिशिएंसी हो गई। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज बेसिकली कि जो आपका विंडो साइज है, ठीक है, जो आपकी विंडो साइज है, जितने भी आपकी जो 1 + 2 अगर विंडो साइज जो बोल रहे हैं, जितनी आपकी सीक्वेंस नंबर की फील्ड में जितनी बिट्स हैं, उतनी ही आपकी विंडो साइज की भी होगी। ठीक है, अगर वो आपसे ऐसा मेंशन करते हैं कि एफिशिएंसी क्या है आपकी, सो अगर आपको याद हो एफिशिएंसी का जो हमने अभी फॉर्मूला कैलकुलेट किया है पीछे, दे आर सेइंग सेंडर विंडो साइज इन द प्रोटोकॉल अपॉन ऑप्टिमल सेंडर विंडो साइज। सो अभी अगर हम यहाँ पे हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव डन, उसमें वी हैव टेकन कि 6 बिट्स हैं, 6 बिट्स रिक्वायर्ड हैं। सो जितनी आपकी 6 बिट्स, आपका जो भी बिट्स रिक्वायर्ड होंगी, उतनी बेसिकली आपको बिट्स चाहिए फॉर योर सेंडर विंडो साइज। ठीक है, तो दे आर सेइंग कि अगर जितनी आपकी अगर n बिट्स हैं तो 2n सीक्वेंस नंबर पॉसिबल हैं, और अगर 2n सीक्वेंस नंबर्स हैं तो इसका मतलब एक विंडो में मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हो सकते हैं? 2n। करेक्ट? ठीक है, let's start with go back n ARQ protocol. So go back n is basically your sliding window method protocol. Again, noisy channels के लिए हम use करते हैं इसे. Go back n ARQ protocol is also known as go back n automatic repeat request. It is a data link layer protocol that uses sliding window method. फिर अब इसमें कुछ points हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. First point is in go back n, जो आपके यहाँ पे एक वैल्यू मेंशन होगी n, सेंडर विंडो साइज इज n, मतलब सेंडर विंडो साइज पहले ही मेंशन होता है। अगर वो आपसे बोले कि गो बैक 10 प्रोटोकॉल यूज करना है, दिस मींस कि सेंडर विंडो साइज कितनी है? 10 है। सेंडर विंडो साइज यहाँ पे आपको 10 पहले से मेंशन होगी। और रिसीवर साइज जो होगा, रिसीवर की जो विंडो होगी, स्लाइडिंग विंडो में सेंडर की विंडो भी होती है और रिसीवर की विंडो भी होती है। तो सेंडर की विंडो जो है यहाँ पे दे विल बी मेंशन, इट विल बी गिवन टू यू। अगर गो बैक n जो आपका मेंशन होगा, n विल बेसिकली बी द सेंडर विंडो साइज, और रिसीवर की साइज इज ऑलवेज 1। So this you have to remember. Go back n में sender window size is n and receiver window size is always 1. ठीक है, ये वाली चीज ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। दिस इज द डिफरेंस, ये आपसे डिफरेंस है जो आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है हर प्रोटोकॉल के बीच में। सो स्टॉप एंड वेट का सेंडर विंडो साइज कितना था? स्टॉप एंड वेट का अब तो ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। सेंडर विंडो साइज था 1, रिसीवर विंडो साइज था 1, बट गो बैक में सेंडर विंडो साइज है n और रिसीवर विंडो साइज है n1। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब अगर आपका गो बैक n में विंडो साइज जो है वो हो जाए 1, अगर आपका जो गो बैक n में वो कह रहे हैं इफ इन गो बैक n द विंडो साइज, सेंडर विंडो साइज इज 1, so it will become stop and wait protocol. So that is why n should always be greater than 1.
तो अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछें if in go back n if your n is equal to 1 then how this protocol will behave, so याद रखना it will behave like stop and wait. So इसीलिए n should always be greater than 1. ये वाला पॉइंट समझ में आया? ठीक है? Okay, so now if they say, if they have a question, suppose they are saying that they say that your transmission time is 1 millisecond. Okay, your propagation time is again 49.5 millisecond. So and you are using go back 10. So what will be the efficiency? कैसे क्या हो गया efficiency बताओ? ये आपको पता है कि टीटी और टीपी सेम ही है, सो आपका 1 + 2a क्या आ जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है. 1 + 2a यू नो इट विल बी 100. सो नाउ दे आर आस्किंग कि आपकी n दे रखा है आपको 10. सो व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी होती है सेंडर विंडो साइज अपॉन 1 + 2a. सो व्हाट इज सेंडर विंडो साइज? 10. 10 by राइट, ये 100. आपका n है, दैट इज सेंडर विंडो साइज अपॉन 100, that is 0.1, that is 10% only. Right? So आपकी efficiency कितनी हो गई? 10%. Now if they say that bandwidth is also given to you and it is 40 Mbps. अगर bandwidth 40 Mbps है, so what will be the throughput? Throughput का फॉर्मूला क्या था? Efficiency into bandwidth. याद रखने ये सारे फॉर्मूले. So what is efficiency? Efficiency is आपकी 10% into 40 Mbps. So it will be, if you write 10 into 100 into 40, so it will be 4. So throughput हो गया आपका 4 Mbps. ठीक है? तो यहाँ पे it is so easy कि आपको n की वैल्यू पहले ही दे देंगे. So you just have to find 1 + 2a and then you have the efficiency. Okay, so this is what. And receiver window size हमेशा क्या रहेगा? Receiver window size will always be 1. Now, go back n does not accept the corrupted frames and out of order frames and silently discards them. मतलब what they are saying कि if अभी तक what was happening in your stop and wait protocol, suppose sender sends a frame and receiver saw that this frame is corrupted. ठीक है, it applied error and control mechanism and saw that okay this your frame is corrupted. So what it will do? Stop and wait क्या करता था? अगर एक corrupted पैकेट मिलता था, yes बताओ. If stop and wait, Ma'am, it again sends the sender on the frames for new frame. सेंडर को वो क्या भेजता था? सेंडर को वो क्या भेजता था? Acknowledgement send. No, not acknowledgement. Acknowledgement नहीं था, क्या कुछ और था वो? Time. हाँ, कुछ याद आया इससे? Flag. क्या है ये? क्या फुल फॉर्म है इसकी? पूनम आपको याद आ गया तो? करेक्ट. नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता था वो सेंडर को कि योर मैसेज आई हैव रिसीव्ड बट इट इज करप्टेड, इट इज नॉट करेक्ट, सो प्लीज डू सेंड इट अगेन. ये स्टॉप एंड वेट का प्रोसीजर था. स्टॉप एंड वेट वुड सेंड द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर दैट योर
पैकेट दैट योर मैसेज इज करप्टेड, बट गो बैक एन क्या करता है, गो बैक एन साइलेंटली उसको डिस्कार्ड कर देता है, ना ही वो कुछ एक्नॉलेजमेंट भेजता है। इसके अलग आप आगे पढ़ोगे कि वो कैसे बताता है कि सेंडर को कि योर मैसेज इज रॉन्ग, योर पैकेट इज रॉन्ग, बट वो क्या करता है, वो कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता है, वो सिंपली जो भी अगर आपके करप्टेड फ्रेम्स हैं या आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स है, आउट ऑफ ऑर्डर मींस अगर आपका फ्रेम का ऑर्डर है ये, बट अगर रिसीवर को मिला ऐसे 0 1 3 2, so it will accept 0, it will accept 1, but it will discard this 3. so अगर आपके करप्टेड फ्रेम्स हैं या आपके आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स हैं, so go back and उन्हें साइलेंटली डिस्कार्ड कर देता है, कोई उससे रिलेटेड एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता है। क्लियर? तो दिस इज व्हाट इज हियर, इफ यू सी यहाँ पे 0 सेंड हुआ, ये आपकी है गो बैक 4। गो बैक 4 वाली का मतलब क्या है, गो बैक 4 का मतलब कि सेंडर विंडो साइज कितना है, 4, ठीक है। so this means that if you have how many sequence numbers you have for now, one you have 0 to 5 sequence numbers, ठीक है। now what will happen is पहले 0 1 2 3 पहले ये 4 जो आपके पैकेट्स हैं 0 1 2 3 वो ट्रांसमिट हुए एक साथ, so 0 1 2 and 3, 0 रिसीव हो गया, 1 रिसीव हो गया, बट 2 जो है वो कहीं लॉस्ट हो गया, ठीक है। 2 रिसीव होने से पहले ही कहीं लॉस्ट हो गया और 3 जाके रिसीव हो गया। now what will happen is receiver will accept this 0, receiver will accept this 1, but अब 2 lost हो गया, so he is expecting what packet number, he is expecting frame of packet number 2, but उसको मिला क्या, 3, so what it will do, it will discard this packet 3, वो इस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, he will say that okay I am asking for 2 and I'm getting 3, so I will discard it. now what will happen is meanwhile 0 का एक्नॉलेजमेंट भेज दिया जाएगा, 1 का एक्नॉलेजमेंट भेज दिया जाएगा, बट अब ना 3 का एक्नॉलेजमेंट गया, ना 4 का एक्नॉलेजमेंट, ना 2 का गया, ना 3 का गया। meanwhile यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका सेंडर है जैसे ही उसको 0 और 1 का एक्नॉलेजमेंट मिला, what it will do, it will again send the rest of the frames, that is 4 and 5, लेकिन ये 4 and 5 भी डिस्कार्ड हो जाएंगे, why, because उसको 2 एक्सपेक्टेड है एंड 2 उसे मिला नहीं, so it will not accept 3 4 and 5, it will simply discard all of them, he is waiting for 2 and he will keep on waiting for 2, और उसके बीच में जब तक उसे 2 नहीं मिल जाएगा, चाहे जितने भी फ्रेम्स आप भेजोगे, the receiver will not receive that frame, he will discard all the frames। फिर अब यहाँ से आपका टाइमर शुरू हुआ यहाँ पे 2 का, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, दैट इज जब तक टाइमर एक्सपायर नहीं होता, तब तक सेंडर विल सी दैट ओके आई हैव नॉट रिसीव्ड द एक्नॉलेजमेंट फॉर पैकेट नंबर 2, दिस मींस कि 2 वहां पे रिसीव ही नहीं हुआ है, सो इट विल रीसेंड द होल विंडो, मतलब 2 से लेके जितनी भी विंडो, 4 की विंडो है, सो 2 3 4 and 5 चारों के चारों पैकेट्स वो दोबारा से रीट्रांसमिट करेगा, बिकॉज ही नोज दैट रिसीवर ने 2 के बाद के सारे पैकेट्स को डिस्कार्ड कर दिया होगा, बिकॉज उसे 2 ही रिसीव नहीं हुआ है। ये बात क्लियर हुई? यस मैम। एवरीवन, सबको क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट कि कैसे पता लगा कि रिसीवर, सेंडर को कैसे पता लगा कि रिसीवर को क्या एक्सेप्ट हुआ क्या नहीं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज गो बैक एन। तो यहाँ पे क्या होगा, go back means sender has to go back n places from the last transmitted packet, मतलब कि sender ने 0 और 1 सेंड किया था, अब 2 से उसे 2 से सेंड करना है, so he has to go back to the n places, that is 5 तक उसने भेज दिए, बट उसे मिला ही नहीं, उसे 2 से मिला नहीं, so 2 3 4 5 पूरी की पूरी विंडो उसने सेंड करी दोबारा से। So go back means sender has to go back n places from the last transmitted packet in the unacknowledged window and not from the point where the packet is lost, ठीक है। मतलब कि 5 तक उसने भेज दिया, ठीक है, 5 तक उसने भेज दिया, बट अब उसको एक्नॉलेजमेंट कहां तक का मिला, 0 और 1 तक का, सो वो पूरी जो विंडो है 5 4 3 2 जो प्रीवियस पूरी विंडो है, वो पूरी की पूरी उसे भेजनी पड़ेगी दोबारा से। So this is what is go back, ठीक है। तो अगर इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने उसमें भी दिया है आपको स्टॉप एंड वेट में, इट इज सेइंग इन
GB3, ठीक है, GB3 they are saying if every fifth packet that is being transmitted is lost and we have to send 10 packets, then how many transmissions are required? Then how many transmissions are required? So what they are saying that in GB3 means 3 window है आपकी, 3 size की window है, and you are sending 10 packets. Out of those 10 packets, every 5th packet जो आप transmit कर रहे हो वो lost हो जा रहा है. So आपकी कितने transmissions की requirement होगी? Try it करो अपने आप. उसके बाद फिर हम discuss करते हैं. बाकी पूनम एंड महेश के आंसर्स आ गए. बाकी फोर ट्रांसमिशंस. देखो 10 पैकेट्स हैं तो 4 ट्रांसमिशंस तो नहीं होने चाहिए और 5th पैकेट आपका लॉस्ट भी हो रहा है बार बार, तो ट्रांसमिशंस तो ज्यादा ही होंगे. ओके चलो. सो यहाँ पे व्हाट दे आर सेइंग दैट 5th पैकेट आपका लॉस्ट हो रहा है, ठीक है. सो उसमें क्या होगा कि इफ यू स्टार्ट फ्रॉम लाइक दिस कि आपके 10 पैकेट्स हैं, ठीक है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now what they're saying GB3 that is 3 मतलब
n आपकी है 3, सो विंडो साइज कितनी हो गई 3, ठीक है। सो अब फर्स्ट क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं ऐसे लेके चलूं कि दिस इज द सेंडर एंड दिस इज द रिसीवर, सो व्हाट इज हैपनिंग, फर्स्ट पहले ये 3 पैकेट्स जो हैं, ये 3 जो फ्रेम्स सीक्वेंसेस हैं, जो भी आप पैकेट बोलो वो सेंड होंगे। सो दिस इज योर 1, दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 3, ठीक है। सो ये सेंड हो गए। अब जैसे ही 1 रिसीव हुआ, सो 1 का क्या मिल गया, 1 का मिल गया एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। सो जैसे ही 1 का एक्नॉलेजमेंट मिला, व्हाट विल हैपन इज, अब आपका 4th वाला सेंड हो जाएगा, ठीक है। सो पहले 1 2 3 सेंड, 1 2 3 आपके सेंड हुए, फिर 1 का एक्नॉलेजमेंट मिला, सो फिर आपका 2 3 4 की विंडो बनी, ठीक है। फिर 2 का एक्नॉलेजमेंट मिला, सो 2 का एक्नॉलेजमेंट मिला, फिर आपकी 3 4 5 की विंडो बनी, उसके बाद 3 का एक्नॉलेजमेंट मिला, सो 4 5 6 की विंडो बनी, ठीक है। फिर 4 आपने सेंड, अब आपने 4 यहाँ पे सेंड कर दिया है, ठीक है। दिस प्लेस पे आपका 4 सेंड हो चुका है, सो 4 इज ऑलरेडी सेंड। तो जब तक आपका जैसे ही आपको 2 का मिला, आपने 5th वाला भेज दिया, यहाँ से 5th वाला चला गया, फिर यहाँ से आपका 6th वाला चला गया, ठीक है। फिर यहाँ से आपको 4 की एक्नॉलेजमेंट वापस मिली, सो यू विल सेंड व्हाट, यू विल सेंड 7। सो अब आपकी विंडो में क्या है, 4 आपका रिसीव हो चुका है। सो अब आपकी विंडो में क्या है, 5 6 और 7। ये चीज क्लियर हो रही है, ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं, दोबारा से एक्सप्लेन करूं? मैम प्लीज 1 2 आफ्टर 1 2 3 सी गो बैक एन का क्या केस है, गो बैक एन का केस है कि आपको पूरी विंडो रिट्रांसमिट करनी होती है अगर कोई भी एक पैकेट आपका लॉस्ट हो जाए, ठीक है। सो नाउ इसको ऐसे आई विल राइट इट लाइन वाइज। ये आपके पैकेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आपका सेंडर है एंड दिस इज द रिसीवर। नाउ 3 मतलब 3 विंडोज बनी, 3 पैकेट्स की विंडो बनी एक। सो दिस मीन्स कि फर्स्ट पैकेट सेंड हुआ, फिर सेकंड पैकेट सेंड हुआ और फिर थर्ड पैकेट सेंड हुआ। अब एक्नॉलेजमेंट मिला इस वाले पैकेट का, फर्स्ट पैकेट का एक्नॉलेजमेंट मिल गया। जैसे ही फर्स्ट पैकेट का एक्नॉलेजमेंट मिला, अब आपकी जो विंडो है, बिकॉज आपकी विंडो हमेशा 3 3 के उसमें चलेगी, अब आपको 1 का एक्नॉलेजमेंट मिला है, सो आपकी अब जो विंडो हो गई वो हो गई ये बाय 2 3 4। बिकॉज इन केस अगर 2 3 4 में से कोई भी एक पैकेट लॉस्ट हो जाए, अगर मान लो आपका 1 2 3 आपने भेजा, ठीक है, आपने एक आपका पैकेट था 1 2 3 आपने भेज दिया, अब आपने 4 भेजा एंड 4 आपका लॉस्ट हो गया। सो लॉस्ट हो गया मतलब कि आपको कौन सी विंडो पूरी भेजनी पड़ेगी, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई व्हाट विल हैपन इज, आपने 3 पैकेट भेजे 1 2 3, जब आपको 1 का एक्नॉलेजमेंट मिला तभी तो आप 4 भेजोगे, ठीक है। सो आपको 1 का एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ, अब आपने अपनी विंडो को स्लाइड कर दिया। सो दिस इज बेसिकली स्लाइडिंग योर विंडो। पहले आपकी विंडो थी 1 2 3, अब आप उसे स्लाइड कर दोगे और वो हो जाएगी 2 3 4। दिस इज व्हाट इज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, कि आपकी पहले 1 पे थी, फिर आपने विंडो जैसे आपको 1 रिसीव हो गया, आपने अपना जो है इसको स्लाइड कर दिया, ठीक है। फिर आपको जैसे ही 2 का एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ, फिर आपने अपनी विंडो को दोबारा से स्लाइड कर दिया और वो हो गया 3 4 5 का। साइज हमेशा 3 ही रहेगा, बट आपकी ऐसे एक एक करके विंडो जो है वो स्लाइड होती जाएगी। फिर आपको थर्ड का एक्नॉलेजमेंट मिल गया, सो नाउ योर विंडो इज ऑफ 4 5 एंड 6, ठीक है। सो एक एक करके आपकी विंडो के जो साइज है वो ऐसे चेंज होते रहेंगे। अब क्या हुआ, अब आपके पास 4 5 6 है, अब आपको 4 का एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया। जब 4 का रिसीव हो गया, सो नाउ इट विल हैव 5 6 7। ये चीज समझ में आई? मैम 3 का रिसीव हुआ, हाँ 3 का रिसीव हुआ तभी तो 4 पे गया ना। सो यहाँ पे आपको 1 का एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया, यहाँ पे आपको 2 का एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया। जैसे ही 1 का रिसीव हुआ, आपने अपना 4th पैकेट जो है वो सेंड कर दिया। जैसे ही 2 का रिसीव हुआ, आपने अपना 5th पैकेट सेंड कर दिया। फिर जैसे ही 3 का रिसीव हुआ, आपने अपना 6th पैकेट सेंड कर दिया। फिर आपको 4th का रिसीव हुआ, यू हैव सेंट योर 7th पैकेट। अब 5th हो चुका है आपका लॉस्ट, राइट? 5th आपका लॉस्ट हो गया।
यही बोला ना, इफ एवरी फिफ्थ पैकेट दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड इज लॉस्ट। सो अब आपकी फिफ्थ, जब आप फिफ्थ पे हो तो आपकी कौन सी विंडो वर्क कर रही है? ये वाली, राइट? अब आप yes, एट्थ पैकेट कब भेजते? एट्थ पैकेट आप तब भेजते जब आपका फिफ्थ का एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाता, राइट? तभी तो भेजते आप अपने एट्थ पैकेट। यस और नो? yes मैम। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज बीच में रोक के बोल दो। ओके, सो अब आपका, अब उसको फिफ्थ का एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ, सो ही विल नो दैट ओके यहाँ पे कुछ पैकेट जो है वो लॉस्ट हो गया, सो ही विल रीट्रांसमिट दिस होल विंडो। सो मतलब 1 सेंड हुआ था, 2 सेंड हुआ, 3 सेंड हुआ, 4 सेंड हुआ, 5 सेंड हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, बट 5 जो है वो रिसीव नहीं हुआ। तो अब दोबारा 5, 6, 7 सेंड होंगे, ठीक है? सो ये आपका हो गया लॉस्ट। अब फिफ्थ, अब आपने ये दोबारा से सेंड किए, 5, 6, 7 आपने दोबारा सेंड किए, सो दोबारा से 5 सेंड करोगे, 6 सेंड करोगे, 7 सेंड करोगे, पूरी विंडो। अब 5 सेंड करा, 5 का एक्नॉलेजमेंट आ गया, सो अब क्या गया आपका? 8, ठीक है? अब आपका ये चला गया 6, 7, 8, ठीक है? क्लियर हुई चीज? अब फिफ्थ, ये आपका पैकेट लॉस्ट हुआ, इसके बाद फिफ्थ पैकेट कौन सा है? 1, 2, 3, Ma'am? 4, 5। हाँ जी, Ma'am, after receiving 3 packets, then I will start after digit 3. After 3 digit, then I will again start. In this way, you are doing counting, na? हाँ, यस। आपकी Okay. 3 की साइज है ना विंडो की, सो पहले आप 3 भेजोगे, फिर जब आपको 1 रिसीव हो जाएगा तो अपनी विंडो को स्लाइड कर लोगे, बेसिकली स्लाइड हो रही है आपकी विंडो, अच्छा। ठीक है? अब आपका देखो फिफ्थ पैकेट लॉस्ट हो रहा है, आपका यहाँ पे पैकेट लॉस्ट हुआ, 6 तो आपने भेजा ना, भले ही रिसीवर ने डिस्कार्ड कर दिया हो, पर आपके एंड से 6th पैकेट सेंड तो हुआ था, राइट? Although receiver has discarded your this packet number 6, ये आपका यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया रिसीवर ने, but you have sent this packet from your end. If you are sender, आपने तो सेंड किया अपने एंड से, so आपका अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका फिफ्थ पैकेट बन गया फिर से, so ये भी लॉस्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अगर मैं इसका दोबारा से यहाँ पे अलग पूरा वो बनाऊं, व्हाट यू कैन से फ्लो डायग्राम, तो आप देखो ऐसे समझो, इस पॉइंट पे 4 पैकेट सेंड हुआ, पैकेट नंबर 4 सेंड हुआ, फिर पैकेट नंबर 5 सेंड हुआ और पैकेट नंबर 6 सेंड हुआ, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरा फिफ्थ पैकेट है, ये मेरा हो गया लॉस्ट, ये मेरा आगे जा ही नहीं पाया, मुझे 4 का एक्नॉलेजमेंट मिल गया, बट आई कुडंट गेट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैकेट नंबर 5। अब मेरी विंडो क्या हो चुकी है? अब मेरी विंडो हो चुकी है 5, 6, 7 की, बिकॉज 4 का एक्नॉलेजमेंट मुझे मिल चुका है और मैंने यहाँ पे क्या भेज दिया है? आई हैव ऑलरेडी सेंट पैकेट नंबर 7। सो 5, 6, 7 की मेरी विंडो है एंड आई एम वेटिंग फॉर पैकेट नंबर 5 कि जैसे ही पैकेट नंबर 5 मुझे अपना एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या भेज दूंगी? पैकेट नंबर 8, ठीक है? बट पैकेट नंबर 5 हो गया लॉस्ट, तो मुझे ये वाली पैकेज दैट इज दिस एंटायर विंडो 5, 6, 7 की एंटायर विंडो दोबारा से भेजनी पड़ेगी, ठीक है? मैंने 6 और 7 भेजे थे, बट रिसीवर ने वो एक्सेप्ट नहीं किए, that does not mean I will not count them as the sent packets, और वो बोल रहे हैं एवरी फिफ्थ पैकेट। सो अगर मैं 6, 7 मैंने भेजे हैं, उसके बाद मुझे 5, 6, 7 की विंडो दोबारा भेजनी पड़ रही है अगर, सो आई विल काउंट दिस 6 and 7 as the sent packet। सो 5 के बाद नंबर 5 का दूसरा पैकेट जो लॉस्ट होगा वो होगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? अब आपका क्या हुआ? अब आपने दोबारा से 5 को भेजा, दोबारा आपने 5 भेजा, आपने 6 भेजा, आपने 7 भेजा, ठीक है? अब आपका 5 जो है वो रिसीव हो गया, सो आपने क्या भेजा? आपने भेजा 8,
8 भेजा आपने, सो आपकी विंडो क्या हो गई 6 7 8। ये चीज क्लियर हुई? इतना क्लियर हुआ? यस मैम। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मुझे बताओ, मैं कुछ और अप्रोच लूं समझाने के लिए। नो मैम। ठीक है, अब आपने दोबारा 5 को ट्रांसमिट किया, 5 आपका रिसीव हो गया क्योंकि अब वो 5th पैकेट नहीं है, सो वो आपका रिसीव हो गया। सो दिस मींस अब आपने भेजा 8, फिर आपने 6 भेजा, अब आपका 6 भी रिसीव हो गया। सो आपने क्या भेज दिया पैकेट अब 9। ठीक है, सो आपका आ गया 9 भी। अब आप क्या वेट कर रहे हो? अब आप वेट कर रहे हो कि 7th पैकेट का जब एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, सो मैं क्या भेजूंगी, आई विल सेंड द 10th पैकेट। यू आर वेटिंग फॉर दिस पैक। ठीक है, बट अब आपकी जो विंडो है वो विंडो क्या है आपकी, अब आपकी विंडो हो गई है ये वाली विंडो, 7 8 9 की विंडो हो गई आपकी। और 7 आपका कौन सा पैकेट है? 7 है आपका 5th पैकेट। आफ्टर एक आपका पैकेट फेल हो गया, उसके बाद से आप दोबारा काउंट स्टार्ट करोगे फॉर 5 पैकेट। सो 1 2 3 4 5 आपका 7th पैकेट है जो फिर से लॉस्ट हो गया। सो दिस मींस अब 7 8 9 आपको दोबारा भेजना पड़ेगा। सो इट विल 7 8 एंड 9। ठीक है, क्योंकि ये आपकी एंटायर विंडो है। इस वक्त आपके करंट विंडो में 7 8 9 पैकेट्स हैं। 7 की एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव नहीं हुई है, दैट इज व्हाई अब आपको 7 8 9 दोबारा भेजना पड़ेगा। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज, अगर मैं दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करूं, मैम होल विंडो ही मुझको भेजना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि गो बैक एंड में यही है कि पूरी विंडो आपको भेजनी पड़ती है। एक अगर पैकेट लॉस्ट हो जाता है, सो क्योंकि वो इसके बाद का कोई भी पैकेट एक्सेप्ट करेगा ही नहीं रिसीवर। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज, आपने 7th पैकेट भेजा, ये आपका लॉस्ट हो गया। सो आपने 8th भेजा, 7 भेजा आपने, 8th भेजा आपने और 9th भेजा आपने। बट आपका रिसीवर जब ये आपका लॉस्ट हो गया, सो इसे वो डिस्कार्ड कर देगा और इसे भी वो डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, सो अब क्या होगा, आपको दोबारा से 7th वाला पैकेट भेजना पड़ेगा। अब बताओ 5th पैकेट कौन सा हुआ इन सब में? ये आपका 5th पैकेट था, लॉस्ट हो गया। अब आपका 5th पैकेट कौन सा लॉस्ट हो रहा है? ये होगा 1 2 3 4 5, राइट? ठीक है, फिर अब आप यहां से स्टार्ट करोगे दोबारा भेजना। आपकी ये वाली विंडो आपने रिमूव करके ये वाली विंडो स्टार्ट की, आपने भेजा 7 भेजा आपने, 8 भेजा आपने और 9 भेजा आपने। अब क्या हुआ, जैसे ही 7 की एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई, आपने क्या भेज दिया 10th। ठीक है, फिर 8 की एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई, 10 ही पैकेट्स हैं तो एक्नॉलेजमेंट की तो बात ही नहीं है। 8 की एक्नॉलेजमेंट आ गई। अब आप क्या वेट कर रहे हो? आप वेट कर रहे हो कौन सी एक्नॉलेजमेंट का? आपकी विंडो कहाँ शिफ्ट हो गई? अब आपकी विंडो शिफ्ट हो गई 9 से 10 पे। अब आपकी विंडो, अगर मैं यहाँ की बात करूं, इफ आई जस्ट राइट इट लाइक दिस, यहाँ पे लिखूं मैं इसे 7 8 9 और आपका अब आ गया 10। सो अब आपकी ये वाला पैकेट हो गया लॉस्ट। ठीक है, आपको 7 का एक्नॉलेजमेंट मिल गया, 8 का एक्नॉलेजमेंट मिल गया। अब आपकी विंडो है ये, और आपका 9th पैकेट हो गया है लॉस्ट। सो दिस मीन्स दैट नाउ यू हैव टू सेंड दीज 2 पैकेट्स अगेन, 9 और 10। सो मतलब अब आप ये वाला हो जाएगा आपका डिस्कार्ड। व्हाई डिस्कार्ड? बिकॉज ये हो गया आपका लॉस्ट। सो अब आप दोबारा से 9 भेजोगे, फिर आप दोबारा से 10 भेजोगे, एंड देन आपको यहाँ पे 9 के एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी और यहाँ पे आपको 10 के एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। सो टोटल जो ट्रांसमिशन हुए वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो टोटल कितने ट्रांसमिशन हुए? 18 ट्रांसमिशन। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? यस मैम। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत एक और क्वेश्चन करेंगे अभी तो आपको और क्लियर हो जाएगा उससे। ठीक है, सो आपको सिर्फ ये, अगर आप देखो, अगर आप ये वाला चीज रखते हैं कि सिर्फ 10 पैकेट्स हैं, तो आप क्या करते हैं, अगर एवरी 5th पैकेट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि 5th वाला पैकेट लॉस्ट होगा और 10 वाला पैकेट लॉस्ट होगा, यही होता। तभी आप लोग के आंसर 12 आए, राइट? बट इतना इजी, ये तो आपका उसमें भी होता है ना स्टॉप एंड वेट में, अगर आपने क्वेश्चन वाला किया होगा so you'll come to know कि stop and wait में भी सेम चीज हो रही है। so go back and now stop and wait में डिफरेंस क्या रह गया फिर?
सो ये डिफरेंस है यहाँ पे कि हर 5th पैकेट, एक तो पूरी विंडो ट्रांसमिट हो रही है दोबारा से, और उसको भी काउंट करके उसमें भी जो 5 पैकेट 5th पैकेट जो आपका लॉस्ट है वो भी आपको दोबारा से सेंड करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, ठीक है, ट्राई करना उसको। तो क्वेश्चन है आपका GB4 है, ठीक है, 10 पैकेट्स आर सेंट and every 6th packet is lost. So बताओ कितने रीट्रांसमिशन से कितने टोटल ट्रांसमिशंस लगेंगे? Okay. Okay, चलो, let's see here. ये आपका सेंडर है एंड दिस इज द रिसीवर, ठीक है। सो फर्स्ट पैकेट, अब कितनी विंडो है? 4 की विंडो है। सो फर्स्ट पैकेट सेंड हुआ, सेकेंड पैकेट सेंड हुआ, थर्ड पैकेट सेंड हुआ और फोर्थ पैकेट सेंड हुआ, ठीक है।
अब आपको मिला इसका एक्नॉलेजमेंट, 1 का एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया। जैसे ही 1 का एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ, 5th पैकेट सेंड हो गया। 2 का एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ, 2 का रिसीव होते ही 6 भी सेंड हो गया। 3rd का रिसीव हुआ, 7th सेंड हो गया। 4th का रिसीव हुआ, 8th सेंड हो गया। 5th का रिसीव हुआ, 9th सेंड हो गया। राइट, एवरी 6th पैकेट इज लॉस्ट। सो अब आपका कौन सा पैकेट लॉस्ट हुआ है? ये वाला पैकेट लॉस्ट हो गया। मतलब अब जो आपका लॉस हुआ वो हुआ यहाँ पे, दैट इज दिस पैकेट। इसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ। सो करेंटली क्या विंडो चल रही है? करंटली विंडो चल रही है आपकी 6, 7, 8 और 9 की। राइट, यस यस मैम। राइट। इसका मतलब कि अगर 6th का एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ, सो ये वाला भी डिस्कार्ड हो गया, ये वाला भी डिस्कार्ड हो गया और ये वाला भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सो नाउ दिस मीन्स दैट अब आपको 10 से पहले ये सारे पैकेट्स दोबारा से सेंड करने पड़ेंगे, दैट इज 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? राइट। सो अगर मैं यहां से काउंट करूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर जो मेरा नेक्स्ट पैकेट जो लॉस्ट होगा वो होगा यहाँ पे 8th वाला। ठीक है, बट फर्स्ट लेट अस ट्राई टू रीसेंड देम अगेन। सो नाउ अगेन ये आपका सेंडर हो गया एंड दिस इज द रिसीवर। आपने स्टार्ट किया सेंड करना। So now you will start again sending the 6th packet, that is here. So आपने 6th भेजा, 7 भेजा, 8 भेजा और 9 भेजा, and now you are waiting for the acknowledgement. So जैसे ही आपको 6th का acknowledgement receive हुआ, what you will do, you will send packet number 10. 10 भी भेज दिया आपने। अब आप वेट करो। आपने 7 भेजा, 7 का acknowledgement receive हो गया आपको, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 8th आपका फिर से लॉस्ट हो गया। So, अब आपकी करंट विंडो क्या हो गई? 8, 9 और 10, यही हुआ करंट विंडो में, क्योंकि ये भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा और ये भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। यस और नो? मैम, हाँ, ma'am, after getting acknowledgement of 1, we will make the window 2, 3, 4, 5. हाँ, Then again, हाँ, क्या पूछ रहे हो आप? क्या डाउट क्या आ रहा है बताओ? ma'am, then 1 with 6, 7, 8, 9 window, ma'am, it will be now 5, 6, 7, 8. हाँ, तो 5, 6, 7, 8 आपकी विंडो हुई, बात ठीक है आपकी। फिर 5 का एक्नॉलेजमेंट मिल गया ना आपको, तो आपकी एक स्लाइड हो गई, तो 6, 7, 8, 9 हो गया। Oh, okay. राइट, 5 यही तो हुआ ना। देखो 1, 2, 3, 4 आपने भेजा, जैसे ही 1 का रिसीव हुआ आपने 5th भेज दिया, 2 का हुआ 6 भेजा, 3 का हुआ 7 भेजा, 8 का हुआ 4 का हुआ 8 भेजा आपने। अब आपको जैसे ही 5 भी आपका सेंड हो गया, सो आपने 9 भेज दिया, बट अब आपका 6 सेंड नहीं हुआ है, इसलिए बाकी आपके डिस्कार्ड हो गए। सो आपकी विंडो हो गई 6, 7, 8, 9 की। 6, 7, 8, 9. Okay. ठीक है, अब आपका 8 आपका पैकेट जो था वो लॉस्ट हो गया और आपके 9, 10 भी डिस्कार्ड हो गए। सो अगेन आपका जो होगा 8, 9 और 10 का होगा। अगर आप अब 6th पैकेट काउंट करो, सो 6th पैकेट है ही नहीं कोई, 1, 2, 3, 4, 5। सो इसलिए अब आपका 8 भी सेंड हो जाएगा, 9 भी सेंड हो जाएगा और 10 भी सेंड हो जाएगा, एंड इनका एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव हो जाएंगे। सो कितने ट्रांसमिशन हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। सो टोटल आपके 17 ट्रांसमिशंस लगेंगे। क्लियर हुई ये वाली चीज एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है,
सो ये आपको बेसिकली बस इतना ध्यान रखना है, अगर इसकी बात अगर आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपका 6th पैकेट लॉस्ट हो रहा है, ठीक है, सो उस पैकेट के बाद से आपके जो 4, अगर विंडो 4 की है, सो उस पैकेट के बाद के 4 पैकेट जो है उस पैकेट को मिला के मतलब वो आपके लॉस्ट होंगे, वो बीच में नहीं आएगा वो पैकेट। ये चीज आप ध्यान रखना, वो बीच में क्यों नहीं आएगा, बिकॉज उसके पहले तक का तो आपको सारा वो मिल ही जाएगा एक्नॉलेजमेंट। सो जो पैकेट लॉस्ट हो रहा है वो आपका फर्स्ट पैकेट होगा उस विंडो का। ये चीज अगर आप ध्यान रखोगे सो आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 8 आपका लॉस हुआ, सो आपका 8, 9, 10 8 आपका फर्स्ट पैकेट था उस विंडो का। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि उस जो आपका जो पैकेट नंबर जो लॉस्ट हो रहा है वो आपकी विंडो का फर्स्ट पैकेट होगा उस पर्टिकुलर विंडो का, ठीक है। सो ये हो गया आपका ये वाली चीज। अब जो नेक्स्ट आपके एक्नॉलेजमेंट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट्स मिले हमें, राइट। एक पैकेट का मतलब हम फ्रेम्स तो बहुत सारे एक साथ भेज रहे थे, बट एक्नॉलेजमेंट हमें एक एक करके मिल रहा था। मोस्टली जो आपका गो बैक एंड होता है वो क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट यूज करता है। सो क्या होता है, वन एक्नॉलेजमेंट इज यूज्ड फॉर मेनी पैकेट्स। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखो, सो आपने 1, 2, 3, 4 4 पैकेट भेज दिए, ठीक है, और अगर अब वो आपसे मांगे एक्नॉलेजमेंट 5, अगर वो आपसे एक्नॉलेजमेंट 5 मांगा है, दिस मींस दैट ऑल 4 आर रिसीव्ड। सो दिस इज व्हाट इज क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, दैट आपने जितने एक्नॉलेजमेंट्स भेजे, जितने फ्रेम्स भेजे, उसके उन सब का एक साथ उसने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। अगर मान लो 1 या 2 में से थर्ड वाला आपका लॉस्ट हो जाता, इन केस थर्ड आपका लॉस्ट हो जाता, सो व्हाट वुड हैव बीन द केस वुड हैव बीन कि आपके पास जो एक्नॉलेजमेंट आता वो आता एक्नॉलेजमेंट 3 करके। तो आपको तब पता लगता कि 1 और 2 तो रिसीव हो गए, बट 3 वाला जो है वो डिस्कार्ड हो गया है, सो ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रेम नंबर 3। So cumulative is one acknowledgement is used for many packets. The main advantage is traffic is less. Disadvantage is less reliability, as if one acknowledgement is lost, that would mean all the packets sent are lost. अगर आपका एक एक्नॉलेजमेंट ये एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाए, सो अगर रिसीवर ने इसके बाद बहुत सारे पैकेट भेज, सेंडर ने बहुत सारे पैकेट सेंड कर दिए हैं, बट व्हाट विल हैपन इज कि उसको ये लगेगा कि एक्नॉलेजमेंट तो मुझे मिला ही नहीं, मुझे दोबारा से सारे पैकेट सेंड करने पड़ेंगे, भले ही रिसीवर के पास एक्सेप्ट हो गया। एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट, कि आप एक एक पैकेट भेजो, एक एक आपको वो मिले, क्या बोलते हैं, एक एक पैकेट एंड एक एक आपको वो रिसीव हो, दैट इज योर एक्नॉलेजमेंट। सो इसमें रिलायबिलिटी तो बहुत ज्यादा होती है कि ओके एक पैकेट भेजा एक एक्नॉलेजमेंट, एक पैकेट भेजा एक एक्नॉलेजमेंट, बट जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो गो बैक एंड मोस्टली जो है वो क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट यूज करता है, बट जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा था, दैट इज जहां पे हमें डी ट्रांसमिशन काउंट करने थे, सो वहां पे हमने एक एक करके एक्नॉलेजमेंट इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट्स भेजे थे, जिससे कि हमें ये क्लियर पता लग सके कि हमें कितने डी ट्रांसमिशन करने हैं। सो गो बैक एंड मोस्टली यूजेस क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट ओनली। सो एट द रिसीवर साइड क्या होता है आपका, रिसीवर साइड पे ओके हाँ, सो व्हाट विल हैपन एट रिसीवर साइड इज कि सपोज आपने यहाँ से, यहाँ बताती हूँ आपको, एक मिनट, हाँ ठीक है। सपोज यहाँ पे आपका सेंडर है and this is the receiver. Now what will happen is कि आपने पैकेट नंबर 0, अपना फ्रेम नंबर 0 आपने सेंड किया, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज कि यहाँ पे जैसे ही 0 रिसीव हुआ, एक एक्नॉलेजमेंट टाइमर होता है, रिसीवर के पास भी अपना एक टाइमर होता है, दैट इज एक्नॉलेजमेंट टाइम, और यहाँ पे सेंडर के पास होता है टाइम आउट टाइमर। टाइम आउट टाइमर बेसिकली क्या करता है, टाइम आउट टाइमर बेसिकली ये देखता है कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में, अगर ये मेरा टाइम आउट टाइमर का टाइम है, इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में मुझे 0 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, सो आई विल सेंड 0 अगेन, राइट। ये टाइम आउट टाइमर का वर्क है, Yes. yes?
ठीक है। एक्नॉलेजमेंट टाइमर क्या कहता है कि इफ दिस इज माय एक्नॉलेजमेंट टाइमर, अगर ये मेरा एक्नॉलेजमेंट टाइमर का टाइम है, टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन इतनी है, सो इस टाइम ड्यूरेशन में मुझे जितने भी फ्रेम्स मिल जाएंगे, सपोज नाउ आई हैव गॉट 0 इन दिस वन, यहाँ मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया, मुझे इस टाइम के अंदर 1 भी आ गया, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज विद इन दिस टाइम पीरियड जितने भी पे फ्रेम्स मुझे सेंड हो गए, मैं उतनों की एक्नॉलेजमेंट भेज दूंगा। नाउ सपोज अगर ये मेरा थोड़ा आई जस्ट इंक्रीज दिस टाइमर, ये है सपोज, ये मेरा टाइम आउट टाइमर है। सो अब व्हाट विल हैपन इज नाउ ही विल से एक्नॉलेजमेंट 2, this means that for 0 and 1 he sent only one acknowledgement, that is acknowledgement 2, मतलब कि 0 और 1 दोनों रिसीव हो गए हैं। now I want acknowledgement number 2, that is I want frame number 2. so what will happen is this acknowledgement timer basically will tell the receiver कि इस टाइम पीरियड में आपके पास जितने भी फ्रेम्स रिसीव हो जाए उनका एक क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट आप सेंड कर दो। So this is what they are saying. At the receiver side, it starts an acknowledgement timer. Whenever receiver receives any packet, तो आपका जो acknowledgement timer है ये फिक्स होता है, ठीक है। acknowledgement timer is fixed and when it expires, जैसे expire होगा, the receiver is going to send a cumulative acknowledgement for the number of packets received in that interval of time. So अगर receiver ने n packet receive किए हैं, so acknowledgement number क्या होगा, n+1, that is 0 और 1 receive किया था तो acknowledgement number क्या गया, 2। मैं आपको बताया था ना पहले भी कि अगर आपने 0 फ्रेम भेजा है तो एक्नॉलेजमेंट किसका आएगा, 1 का, राइट। याद है, भूल गए, याद है ये चीज, भूल गए, राइट ना, ठीक है। सो अगर आपने 0 फ्रेम भेजा है सो आपको एक्नॉलेजमेंट आप भेजोगे 1 का। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि इफ यू आर सेंडिंग, इफ यू हैव रिसीव, मतलब रिसीवर ने अगर n पैकेट रिसीव कर लिए तो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होगा वो होगा n+1। और ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, जो टाइम आउट टाइमर होगा सेंडर साइड पे वो हमेशा ज्यादा होगा एक्नॉलेजमेंट टाइमर से। सो दिस पॉइंट इज important, remember this, timeout timer at sender side should be greater than the acknowledgement timer, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अब आपका एक जो नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट बचा है गो बैक एन का, वो ये है कि मिनिमम सीक्वेंस नंबर्स, अगर आपका गो बैक एन मतलब आपका वो बोल रहे हैं कि एन आपका साइज है विंडो का, सो मिनिमम सीक्वेंस नंबर्स जो चाहिए होंगे वो होंगे n+1। मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज, यहाँ पे आप देखो अगर आपका है गो बैक 4, ठीक है, गो बैक 4 मतलब n इज इक्वल टू 4, मतलब विंडो साइज कितनी है, 4 विंडो साइज है। सो वो बोल रहे हैं कि आपके मिनिमम सीक्वेंस नंबर्स होने चाहिए n+1, दैट इज आपके सीक्वेंस नंबर अगर n इक्वल टू 4 है तो 5 होना चाहिए। हमने केस 1 लिया है, this is case 1 where sequence numbers is equal to n itself। पहले हमें ये देखना है कि n से काम क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। सो हमने n मतलब कितने सीक्वेंस नंबर हो गए हमारे, 4, दैट इज 0 1 2 एंड 3। अब क्या हुआ, सेंडर है यहाँ पे, ये सेंडर है एंड ये रिसीवर है। सो 0 पैकेट सेंड हुआ, 1 पैकेट सेंड हुआ, 3 पैकेट सेंड हुआ, 0 1 2 3 मतलब आपके 4 पैकेट सेंड हो गए जिनके सीक्वेंस नंबर्स हैं 0 1 2 एंड 3, ठीक है। अब क्या हुआ, 0 रिसीव हो गया, 1 रिसीव हो गया, 2 रिसीव हो गया और 3 रिसीव हो गया। और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट 4, राइट, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट 4 मतलब कि वो नेक्स्ट पैकेट को एक्सपेक्ट कर रहा है। इतना चीज क्लियर हुई? ठीक है। अब क्या हुआ, आपका जो ये एक्नॉलेजमेंट था ये हो गया लॉस्ट। अब ये आपका टाइम आउट टाइमर था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये एक्सपायर हो गया। अब रिसीवर सेंडर को इस टाइम पीरियड में कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, सो व्हाट ही विल डू, ही विल रीट्रांसमिट देम अगेन, ठीक है। बट अब क्या होता है, आपको ये पता है गो बैक एन में कि वो डुप्लीकेट पैकेट्स को क्या कर देता है, डुप्लीकेट पैकेट्स को क्या कर देता है, Discard. डिस्कार्ड, राइट, डिस्कार्ड कर देता है डुप्लीकेट पैकेट्स को।
सो इन दैट केस अगर डुप्लीकेट, क्योंकि ये अब सेंडर तो दोबारा से भेज रहा है 0 1 2 3, सो इसको क्या करना चाहिए, रिसीवर को इन्हें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ठीक है। बट क्या होगा, रिसीवर को ये लगेगा कि दिस इज द सेकंड सेट, क्योंकि जो आपके सीक्वेंस नंबर्स हैं वो रहेंगे तो 0 1 2 3, राइट, क्योंकि 4 अगर सीक्वेंस नंबर्स हैं तो हो सकता है आपका फ्रेम इतना बड़ा हो, इतना बड़ा फ्रेम हो। सो दिस इज 0 1 2 3, तो यहाँ से दोबारा आपका एक सेकंड सेट शुरू हो जाएगा 0 1 2 3 का। So this is your first set and this is your second set. So receiver will think that this is the second set. ये second set है मैसेज का, so वो इसे accept कर लेगा. So this is what is written here. Duplicate packets accepted as receiver don't know whether this is the next set or the previously accepted one. So ये केस हुआ जब सीक्वेंस नंबर n है। अब सीक्वेंस नंबर है n+1. n+1 मतलब कि आपने एक एक्स्ट्रा सीक्वेंस नंबर को लिया है, ठीक है। सो अब व्हाट विल हैपन, 0 1 2 3 0 1 2 3 तो रिसीव कर लिए, और नाउ ही इज सेइंग दैट सेंड मी एक्नॉलेजमेंट नंबर 5। अब वो सॉरी एक्नॉलेजमेंट नंबर 4 मतलब नेक्स्ट पैकेट भेजो आप मुझे। अब आपके पास जो सीक्वेंस नंबर्स हैं वो क्या है, 0 1 2 3 4 आपके पास, क्योंकि आपका जो साइज तो आपका 4 ही है विंडो का, लेकिन सीक्वेंस नंबर्स क्या हो गए 5, दैट इज n+1। सो अब आपके 0 1 2 3 4 आपके सीक्वेंस नंबर्स हो गए 4। So, अब ही सेइंग कि आई एम एक्सपेक्टिंग एक्नॉलेजमेंट 4, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग दिस पैकेट दैट इज द नेक्स्ट पैकेट। अब इसका टाइमर एक्सपायर हुआ यहाँ पे, इसने दोबारा से 0 भेज दिया, बट अब जो रिसीवर है वो इसे डिस्कार्ड कर देगा बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग दिस पैकेट नंबर 4 एंड ही विल आल्सो सेंड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ 4 ओनली। बट उसे मिला पैकेट नंबर 0, so he will know that okay this is a duplicate packet and I need to discard these packets। तो वो ये सारे के सारे पैकेट डिस्कार्ड कर देगा और भेजेगा एक्नॉलेजमेंट 4। सो दैट इज व्हाई अगर हमारे पास n हमारा गो बैक n में मतलब n हमारी विंडो साइज है, सो मिनिमम सीक्वेंस नंबर्स कितने चाहिए होंगे, n+1। ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है। सो अगर आपके पास वो आपको भेजें कि सेंडर विंडो साइज n है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सेंडर विंडो साइज n है गो बैक n में, सो मिनिमम सीक्वेंस नंबर्स कितने चाहिए होंगे, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट मिनिमम सीक्वेंस नंबर्स चाहिए होंगे n+1, ठीक है। और बिट्स कितनी पता कैसे लगेगी, बिट्स लगेगी कि आप log base 2 n+, ये base 2 में आएगा, ठीक है, base 2 है ये, n+1 कर लो तो आपको नंबर ऑफ बिट्स पता लग जाएंगी। क्लियर? यस मैम। ठीक है। सो ये आपको मैं स्लाइड दे दूं, ये वाली दोनों फ्रेमिंग तो मैंने आपको भेज दी थी, गो बैक एंड वाली भी भेज दूं या सिलेक्टिव रिपीट के बाद भेजूं, रिवाइज करना है आज का तो भेज दूं? है मैम, भेज दूं। तो स्टॉप Yes, एंड ma'am. वेट और गो बैक एंड में आपको भेज दूंगी, ठीक है। बट एक क्या होगा ना, सिलेक्टिव रिपीट भी मैं आपको भेजूंगी। सो सिलेक्टिव इसको आप लोग प्रिंट मत निकालना इसका, ठीक है। जब मैं आपको सिलेक्टिव रिपीट के बाद क्वेश्चंस के साथ जब आपको स्लाइड ये वाली दोबारा से भेजूंगी तब प्रिंट निकालना, ठीक है। Yes, ma'am. सो आज का समझ में आ गया स्टॉप एंड वेट, वो सॉरी गो बैक एंड, यस मैम। ठीक है। Yes, कोई भी ma'am. डाउट हो सो क्वेश्चंस ट्राई करना, एंड अगर कोई भी डाउट लगेगा सो जस्ट मैसेज कर देना और पूछ लेना। आज आपका वहाँ पे यूट्यूब पे सेट एंड रिलेशंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जाएंगे, सो जिसको भी प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस वो आ जाना, ओके। Okay, ma'am. चलो सेम टाइम 6 PM। Yes, ma'am. ओके चलो, थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. टेक केयर।